हेलो ड्रीमर्स। तो मैंने अपना पहला पॉडकास्ट कर लिया है। मैंने एडिटिंग करके कंप्लीट कर लिया है, सो हियर इज़ द वीडियो। और जब मैंने उस वीडियो को देखा ना, इस पॉडकास्ट को देखा, तो उसमें मैंने पाया कि मेरे अंदर बहुत सारी खामियाँ हैं। बहुत सारे फंबल्स हुए, मिस्टेक्स हुए, नेटवर्क इश्यूज़ हुए, टेक्निकल इश्यूज़ हुए। कुछ पता नहीं था पॉडकास्ट के बारे में, लेकिन अगर मैं इंतज़ार करता ना सीखने का, परफेक्ट होने का, तो शायद ये पॉडकास्ट कभी नहीं हो पाता। इसलिए मैंने जस्ट स्टार्ट कर दिए। हमारे गेस्ट जो आए हैं इस बार, ज़ोई, जिन्होंने मेरा फर्स्ट गेस्ट जिन्होंने एक्सेप्ट किया विदाउट क्रेडिबिलिटी कुछ भी, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो बताते हैं लोगों को। शी इज़ एन एक्सीलेंट पर्सन। क्योंकि मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ ना, ये बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज़ या कुछ भी इश्यूज़ आए जिनकी वजह से किसी का भी दिमाग ख़राब हो जाता कि भाई ये क्या कर रहा है। लेकिन उन्होंने बहुत पेशेंटली हैंडल किया। मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि मेरे साथ एक बहुत पेशेंस दिखाने के लिए। और अगर टी-शर्ट्स या क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट कर रहे हो, तो ज़रूर देखिए इनको, क्योंकि ज़ोई ने वो सारे गाइड आपको बताए हैं कि कैसे स्टार्ट करने से लेकर क्या माइंडसेट होना चाहिए, सब कुछ। सो प्लीज़ वॉच इट टिल द एंड और पॉडकास्ट देखिए एंड एन्जॉय। Okay. Hi, everyone. Hi, Arjun's audience and everyone who is listening to the podcast right now. So, this is Zoe, and I am from Chhattisgarh. So, basically, I have been born and brought up in a central India where we have a, state, like in the state, we have a district called Bastar. So, there, tribal people actually create their, journeys by painting on the walls, and that art is called Bastar art. So what I do is I sketch Bastar art and I create stories out of it. So I really wanted to do something that is unique, that is of my own, and also wanted to get out of this. I mean, I think a lot of people could relate to me in terms of, this corporate area where you have to work for money and you might or you might not like the work, depends on what your personal interests are. So I really wanted to actually have, the thing that I love, and I would love to do it as much as possible and I would just enjoy doing it endlessly. So that was my dream, to do something of my own, and I am in the process of achieving my dream right now. And I'm ready to give whatever it takes, whether it's courage, determination, hard work, anything required, because I just feel like I am a very common, ordinary person, but I can do anything in my life. So there is I would say, a strange power within this sentence, that I think I can achieve anything, and any person can do that. It's just that you need to have that determination to, yes, I want to be there, and that is my dream and I want to achieve. I don't want to make it a difference that, yes, this is the dream, but this is the reality and the dream is very far. So that's the thing I actually, want to convey this through my whole Chinhari. So Chinhari is the name of the clothing brand which I'm starting right now. Through Chinhari, that see, so I'll share one of my instances. You might have seen in my Instagram story as well. I wanted to sell t-shirts, but because it would impact the shopkeeper's business, so they were not allowing me to set up the stalls. I was not getting the permissions from the officers here in Bangalore. So finally, I was like, okay, after 2 weeks of trial, I didn't even got one stall to set up. What should I do? I took a plastic basket which was there in my home. I wrapped around with a scarf. We call it dupatta in Hindi, if people of India know dupatta. So I just took the dupatta, wrapped it, took all of my stuff, and I just went out like a hawker in selling t-shirts and tote bags to people who are walking. So that is one thing, like, if anything stops me, if option A is stopping me, I would go to option B. If option B is stopping, I would go to option C. Yes, that is the thing. No, there are many people out there, right? They need to start something. They are dreaming of something, but the main thing is not they'll make excuses. I'll not say excuses. Obviously, when they see it through their perspective, it might be a big thing. But like you said, no, starting is the thing. Like you have to start. Unless I was on a today when you accepted when we talk about the podcast and all everything and all, and now when we are sitting here, no. So I remember I've wrote I used to keep a book where I used to write like what I want to do.
So there, I one day I just opened that book and I just wrote, someday I want to do podcast kind of thing, and then I just wrote it and I just kept it. I think it's like 3 years back. I just kept it around and I didn't look at it. Finally, when just yesterday I was just thinking about what questions or what should I ask and I take out and I take that book and I open it, and when I see it, no, I finally saw that okay, this was one of the thing. But unless I have taken that one step, no, that I have just texted you, or if even if it's like you already set up a brand. So if I was afraid, like, okay, should I text her or not? Will she accept or not? I have no followers, or I have this, I have that, and she don't know me. I think that is the thing. You just text it once. The worst thing is you could have said no, we will not do it. So I want to tell no everyone, like you did, no, that is the best thing, okay? Because when you start a business, I'm sure when you start your business or when you were thinking about it, when you will say to your parents or your society or your friends, that I want to do this, they will come and say, no, better don't do this, better don't do this, this is a waste of time, or what you are doing here. Or some parents might be supportive. I am lucky in this that my parents are supportive, but many parents of my friends and all, no, they don't support this at all. They'll say कि, अरे बेटा चलो गवर्नमेंट जॉब कर लेते हैं, like government job कर लो, ये what is this useless things and all, what is this content creation and all, no. So what I want to ask you is, no, so when you started, I'm sure you might have met some such people, and how did you handle that, or how you handle it, like when people doubt your vision, your dreams, how did you handle it? So I am very lucky in this regard. I wasn't surrounded by many people who won't support it. When I actually Okay. showed them my sketches and told how the story flows through the sketches, they were like, this is such a unique idea and we can actually do that. But yes, there were some barriers, I would say roadblockers, where people around me were worried that, if I go like on the street and it's not safe for women, first thing. Second, I got a lot to hear that this is not legally mentioned anywhere, that hawker, being a hawker or going out and selling on roads, is it allowed or not. You should actually talk to police officers, and you shouldn't do this in this area. And also, I don't know if people like Bangalore audience would accept it or not. So I was receiving a lot of negative remarks, and people were actually stopping me from doing this. So before even going out, I was already afraid that okay, there are a lot of possibilities, a lot of people have given negative possibilities, not even a single was positive one key, you go do it and everything will be fine. There was no one saying that out of all of my people. And that's when I was like, you know what, if I will do it, I will figure it out. What can happen worse? Okay, police will catch me, I'll go to jail. It's okay, I will do something and I won't regret it that I didn't got a chance to do it. So I just feel like instead of regretting sitting back by listening to people what they are saying, instead of that, you should do what you want. And secondly, while you were saying that, you write it on your notebook about starting a podcast. So I was just thinking there is also something, I would say, mentally that stops you from doing it right now. Like there are two ways to look at it, that, okay, on one day I want to do this. And then there is another way that of thinking the same thing. Okay, I really like and I want to make a podcast. I'm going to do it right now. So I would say Yeah. that people need to actually change the mindset of, yes, this is what I love and I want to do it right now, or I want to execute it, instead of actually thinking about it, planning it, and calling it as dream. I would say just do the execution. Because if you say that is my dream, I want to achieve one day, if you talk about it in this way, you're already, making far from yourself. Okay, this is me, but my dream is here. So Mm-hmm. instead of that, people can actually, be like, I'm going to work on my dream. This is my dream, but I'm going to make it into action. Because I think बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि हाँ, मम्मी ये बोल रही है, पापा ये बोल रहे हैं, अभी करेंगे, तभी करेंगे, ये फैक्टर्स हैं. तो मुझे लगता है लोगों को इससे उठ के देखने की जरूरत है कि चलो अभी करके देखते हैं. So I am very, that type of person. Like I got this whole idea of Chinhari and making the sketches, getting that, printed different stories, love story, struggle story on t-shirts and tote bags. Just 6 months, no,
not even 6 months, 2 months ago, I got this idea. And 1 month ago, I actually started working on it. And 2 weeks ago, I even started selling t-shirts and tote bags, and now I'm getting viral. So it is just in 2 months, everything happened from discussion to execution. And now I'm here. I have started the brand, I have the website, and I have a good reach now. अच्छा, ठीक है। तो मेरा कहना ये है ना कि आपने जैसे कहा ना कि आपने एक ड्रीम सोचा, आपने उसमें काम किया, एंड देन 2 मंथ्स के बाद आपका काम थोड़ा अच्छा से चलने लगा, या जो भी बोले थोड़ा रिएक्शन मिलने लगा उसके लिए। बट देयर आर पीपल ना जिसके पास ऐसा होता है कि मेरा एक ड्रीम है, मेरा ड्रीम है कि मैंने टी-शर्ट बिजनेस स्टार्ट करना है, एंड मैंने कर भी लिया, बट उनको ना नहीं मिलता है वो। आपको 2 महीने में शायद वायरलिटी मिल गया होगा, लेकिन या थोड़ी सी पॉपुलैरिटी मिल गया होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि रिजेक्शन मिलते मिलते ना दे आर लाइक फेड अप कि भाई कर लेते हैं भाई, ये हो नहीं रहा है। तो इवन फॉर माई सेल्फ ना, जब मैंने कंटेंट क्रिएशन, या मैंने इससे पहले भी, I'll tell you what happened, मैं डिटेल बताता हूँ आपको। इससे पहले भी ना मैंने यूट्यूब चैनल एक खोला था। इट्स लाइक 2-3 years बैक मैंने यूट्यूब चैनल एक खोला था, एंड सपोजिटली ना कि मेरा वीडियो बनाते बनाते एक वायरल चला गया, 6 लाख समथिंग। इट वॉज ए मतलब फेसलेस चैनल जिसमें वॉइस ओवर ही चल रहा था, तो 6 लाख समथिंग चला गया, मुझे कुछ रेवेन्यू भी आ गया। एंड देन उसके बाद मैंने वीडियो डालना स्टार्ट किया, थोड़ा और डालना स्टार्ट किया, थोड़ा बहुत चला, एंड देन वायरलिटी जैसे ही था तो थोड़ा बहुत चला, उसके बाद नहीं हुआ। एंड देन आई स्टार्टेड नेक्स्ट, फिर दूसरा मैंने कंटेंट क्रिएशन फिर दूसरा ट्राई किया, फिर उसमें भी नहीं हुआ, फिर क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज में भी ट्राई किया, फिर उसमें भी नहीं हुआ। ऐसा करते 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 कई साल ऐसे ही चला गया। सो आई वांट टू आस्क यू ना कि जब ऐसा रिजेक्शन हो, आपने जैसे कहा कि 2 महीने में आपका वायरलिटी, पर किसी को नहीं मिलता है, सम आर नॉट लकी कि भाई उनको 1 साल में हो जाए, 2 साल में हो जाए, 3 साल में हो जाए, नहीं मिलता है। तो व्हाट यू वुड लाइक टू से कि भाई उनके लिए क्या है कि जिनका भी हो नहीं रहा है, बिल्कुल तो वो कैसे इस चीज को हैंडल करे? जी। तो पहले तो मैं आपको अपना बैकग्राउंड देना चाहूंगी कि ये मेरा पहला बिजनेस नहीं है जो मैंने शुरू करने की कोशिश की है। पिछले 4 साल में मैं 2 से 3 बिजनेस 2-2 साल चलाने की कोशिश कर चुकी हूँ, और उसके बाद वो दोनों सक्सेसफुल नहीं हो पाए। मैं पिछले 4-5 साल से लगातार कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना खुद का बिजनेस डाल सकूं एंड खुद का कुछ कर सकूं, और फेलियर मुझे बहुत बार मिला है। और ये पहली बार है जब मुझे सही मायने में सही तरीके से थोड़ी कामयाबी मिल रही है। मैं ये नहीं बोलूंगी अभी पूरी प्रोग्रेस हुई है, पर बहुत सारे रिजेक्शन और फेलियर रहे हैं। पर मेरा मानना यह है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हमेशा रहती है, आप चूज करते हो आपको कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो अगर आपका यूट्यूब चैनल है वो नहीं चल रहा है, तो आप देख सकते हो कि ओके आप क्या क्या जॉनर्स ट्राई कर सकते हो। जैसे आपने क्राइम ट्राई किया, या फेसलेस चैनल, लेट्स से गेमिंग ट्राई कर रहे हो, तो आप बहुत सारे इस तरीके से स्ट्रैटेजीज ट्राई कर सकते हो कि आप अगर जॉनरा चेंज करो तब आपका व्यू बढ़ रहा है, या व्हाट इफ आपको अपना एक्चुअली में यूट्यूब में बूस्ट करने की जरूरत है, लाइक जैसे एड्स डालते हैं लोग, तो आपको एड डालने की जरूरत है। तो आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स कि आप कैसे फिगर आउट कर सकते हो कि आप कहाँ पे लैक कर रहे हो एंड कैसे उस चीज को इम्प्रूव कर सकते हो। बिकॉज आई थिंक रिजेक्शन से इंसान सीखते जाता है कि हाँ ठीक है, अभी यूट्यूब नहीं चल रहा है मेरा, ओके क्या मैं बात ढंग से कर सकता हूँ, ओके यूट्यूब नहीं तो मैं पॉडकास्ट शुरू करता हूँ, पॉडकास्ट नहीं इसमें लोगों को वो अटेंशन नहीं मिल रही, तो मे बी मैं, अगर आप जिमिंग में अच्छे हो तो लेट्स से मैं अपना जिम खोल सकता हूँ एंड मैं वो ट्राई कर सकता हूँ, पर्सनल ट्रेनर बन सकता हूँ। सो बेसिकली आई थिंक लाइफ इज ऑल अबाउट कि आप ट्राई करो, आपको रिजेक्शन मिलेगा, लोगों से फीडबैक मिलेगा, आप आगे बढ़ो उस चीज में। बिकॉज मेरा पहले एक फूड टेक स्टार्टअप था, फिर पेट से रिलेटेड था, एंड अब जाके ये चिन्हारी है जो आर्ट के ऊपर है। तो बहुत अलग अलग सेगमेंट्स में मैंने ट्राई किया है। एग्जैक्टली मैं भी यही था, लोगों को यही बताते रहता हूँ कि देखो तुम लोगों को समझ नहीं आएगा, जब तुम स्टार्ट करोगे तुमको समझ नहीं आएगा, तुमको लगेगा कि इसमें मेरा इंटरेस्ट है या मैं शायद इसको कर सकता हूँ। यू गो इनसाइड, आप करते हो थोड़े दिन, आपको समझ आ जाता है कि भाई आपसे नहीं होने वाला ये। तो आप, इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो ड्रीम छोड़ देना है, यू हैव टू गो टू द नेक्स्ट। जो अब कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि कभी ये जस्ट टेक योर ड्रीम ऐसा लेके आऊंगा ना। अभी जस्ट आई वाज जस्ट मेकिंग फन कि भाई चलो फन कंटेंट बना लेते हैं, उसमें भी ट्राई कर लिया, इसमें ट्राई कर लिया। देन वन डे ना ऐसा रियलाइज हुआ कि नहीं, कंटेंट बनाना है तो कुछ ऐसा बनाना है जिसमें लोगों को वैल्यू होना चाहिए। देन आई स्टार्टेड फर्स्ट, इससे पहले मैंने स्टार्ट किया था जज्बातें, जहां पे मैंने एक ही मोटिवेशन लेके ही स्टार्ट किया था कि जब when there are so many people कि भाई उनके लाइफ में कुछ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो पेन लेके बैठे हैं, लेट्स क्रिएट समथिंग होपफुल ना, मतलब होपफुल कोई पोइट्री हो गया या उसमें से स्टार्ट किया था मैंने।
सो आई नेवर थॉट कि इस डायरेक्शन में जाएगा, है ना. सो आफ्टर स्टार्टिंग फॉर मेनी डेज ना, मेरा एक ये रहता है कि व्हेन आई हैव सो मेनी इंटरेस्ट, मैं बुक्स भी पढ़ना चाहता हूँ, मैं कुकिंग करना चाहता हूँ, मैं आई वांट टू डू स्काई डाइविंग या मुझे स्विमिंग सीखना है, मुझे ड्राइविंग सीखना है, मुझे कार रेसर बनना है. तो इतना सारा इंटरेस्ट लेके ना कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई एक्चुअली मैं इसमें इंटरेस्ट हूँ या जस्ट मुझे ऐसे हॉबी मुझे पसंद आ रहा है, तो समझ नहीं आता था. सो आई यूज्ड टू ट्राई एवरीथिंग. तब जाके फाइनली ना, जब एक दिन मैं सभी को ये भी बोलना चाहता हूँ, अगर ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो इसी में मैं बोलना चाहता हूँ कि आपको ना खुद 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 के साथ थोड़ा वक्त बिताना जरूरी है. एंड इट्स मतलब मैं इसका फायदा नहीं गिना सकता हूँ. व्हेन आई सेट माई सेल्फ कि भाई आपको अगर लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, तो जस्ट आप कुछ मत करो, आप बैठ जाओ, आप खुद के साथ बैठ जाओ एंड स्टार्ट थिंकिंग. भाई फर्स्ट से स्टार्ट करो, जहां से गलती हो रहा है, जहां से तुम फेल हो रहे हो ना, वहां से स्टार्ट करना स्टार्ट कर दो कि क्यों, क्योंकि रीजन हमेशा रहता है क्यों. एंड आई वाज मैंने वही किया ना, मैं बैठा एंड आई वाज थिंकिंग कि भाई क्यों मैं हर काम को छोड़ देता हूँ. बिकॉज इससे पहले मैं भी फूड इंडस्ट्री में काम कर चुका हूँ. फिर उसके बाद वहां छोड़ के आई वाज लाइक कि भाई ठीक है, मुझे सेल्स में करना है कुछ. मान्यवर बोल के एक शोरूम था, तो उसमें जाके मैंने रैंडमली जाके मुझे सेल्समैन का तो नहीं मिला, हेल्पर का मिला. सो हेल्पर से फिर मैं सेल्समैन बना, सेल्समैन से फिर मैं कैशियर भी मैंने ट्राई किया. तो फिर मुझे उसके बाद थोड़ा असिस्टेंट मैनेजर का थोड़ा बहुत काम सीखा. एंड देन आई वाज लाइक कि भाई मैं इसको भी क्विट कर देता हूँ क्योंकि मजा नहीं आ रहा है. क्योंकि मुझे चाहिए था, मुझे ट्रैवलिंग करना था. तो फिर मैंने क्या कर रहा, ट्रैवलिंग भी हो जाएगा, काम भी हो जाएगा. सो आई ट्राई जोमेटो. तो मैंने जोमेटो में मैं खाना भी डिलीवरी करता था और फिर साइड में मैं थोड़ा बहुत ट्रेडिंग भी करता था. ट्रेडिंग भी मैंने स्टार्ट कर दिया था. तो ऐसे मल्टीपल इंटरेस्ट थे ना, तो ऐसा करते 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 आई नेवर थॉट ना कि उस समय से फिर मेरा शुरुआत होता है एंड देन आई क्विट, शुरुआत होता है देन आई क्विट. देन वन डे ना आई सेड एंड कि भाई ये इनफ है, अब इससे नेक्स्ट जब जस्ट बातें स्टार्ट किया. एंड देन वहां से भी वही एक टायर्डनेस आ रहा था कि भाई चलो नहीं करते हैं इसको, अभी मजा नहीं आ रहा है. देन आई सेड ना, और मेरे बोल कि भाई चलो ढूंढते हैं एक्चुअली हुआ क्या है. बैठा एंड देन आई रियलाइज कि एक चीज का कमी है मेरे काम में. मैं चाहता हूं कि मैं लोगों की मदद कर सकूं. अभी तक मैंने जो भी काम कर रहा हूं ना, उसमें 90% चीजें मैं खुद के लिए कर रहा था. एंड आई वाज थिंकिंग कि मैं दूसरे के लिए कर रहा हूँ, पर वो नहीं है, वो मैं खुद के लिए कर रहा हूँ ना. सो वो फीलिंग जब से ऐसा है, जब से स्टार्ट किया है काम से कि मुझे दूसरे के लिए करना है एंड देन आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ, वो मैच नहीं हो रहा है ना. तो तब जाके मुझे समझ आया कि यस, तुमने जो कुछ किया है वो समहाउ इनडायरेक्टली तुम्हारे लिए था. नाउ यू हैव टू क्रिएट समथिंग फॉर अदर्स, तब तुम्हारा हो जाएगा. देन दिस जस्ट टेक योर ड्रीम शेप लिया एंड देन किया. तो मैं यही कहना चाहता हूँ ना कि शायद लोग समझ नहीं आता है पहले, जब स्टार्ट करोगे कभी समझ नहीं आएगा. धीरे धीरे आप किस डायरेक्शन में जाते रहोगे एंड देन आई थिंक सक्सेस का रास्ता भी ऐसे ही है ना कि आप स्टार्ट करोगे एंड आपको पता नहीं रहेगा. आज कई सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं ना, कोई कंपनी किसी नाम से वो फेमस किसी नाम से हुए थे, पर आज कर कुछ रहे हैं और उसमें बड़ा नाम बना लिया है ना. तो कभी भी किसी को भी पता नहीं लगता है स्टार्टिंग में. जैसे कि आपने कहा कि आपको पता नहीं था, आपने इतने सारे ट्राई करने के बाद आपको पता आ गया ना. और लोग, एक चीज ये भी है, जैसे कि मैं कह रहा था कि 2 महीने में सक्सेस शायद लोग देख लेते हैं आपके, पर उसके पीछे जितने फेलियर्स हुए हैं उसको वहां तक आने के लिए ना वो लोग नहीं देखते हैं. इट्स लाइक कि भाई उनका तो हो गया, वो तो लड़की है ना, उनका कोई अगर आप कंटेंट में वायरल हो रहे हो, तो अभी ये भी एक ट्रेंड है जो बहुत सारे ना लोग कहते हैं वो तो लड़की है, वायरल हो ही जाएगा. अगर वायरल होता भी तो अगर लड़के के कारण होता भी है तो मुश्किल से 1 या 2 बार हो सकता है, पर कोई एक्चुअली में आइडिया से रिलेट करे एंड चीज को समझे, उसमें घुसना चाहे कि हाँ यहाँ पे सिर्फ लड़की नहीं, यहाँ पे एक पैशन है, यहाँ पे एक नया यूनिक कंसेप्ट है, या कोई हार नहीं मान रहा है, वो रेजिलियंट है, वो आगे बढ़ रहा है. तो ये सारी चीजें हैं जो मैं लोगों के लिए लेके आना चाहती थी कि जैसा आपने कहा कि आई मीन ड्रीम्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप हार नहीं मानो, आप करते जाओ. और आपको जिस वो चीज फिगर आउट करो पहले तो अपने साथ, खुद के साथ कॉन्वर्सेशन करके कि हाँ मुझे क्या चाहिए, मुझे किस चीज से सबसे ज्यादा खुशी मिलती है. जैसे आपको लोगों की मदद करके मिलती है, और मुझे मैं जो आर्ट बनाती हूँ, अगर लोग उसकी तारीफ करते हैं, उसमें जो स्टोरी है वो लोग देख पाते हैं और खुश होकर बताते हैं कि हाँ ये स्टोरी 3 लड़कियों की है. मतलब मैंने एक स्टोरी बनाई थी जो लोगों को बहुत पसंद आई, तो अब कोई भी देखता है तो बोलता है हाँ ये उन 3 लड़कियों की स्टोरी है, उनके घर की कहानी है. तो जब कोई आपकी इतनी घंटों की मेहनत है एंड उसको कोई अप्रिशिएट करता है, तो इतनी खुशी मिलती है दिल से कि लोग उस चीज को समझ रहे हैं. तो मेरे लिए वो एक बहुत ही
अंदर से मोटिवेशन वाली बात थी कि अब तो मैं कुछ भी कर दूंगी एंड जो भी कोशिश हो सके। पर यही है कि स्ट्रगल हर एक स्टेप में रहता है, बहुत सारी मुसीबतें आती हैं। जैसे अभी मुझे मैं वेंडर्स ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे बल्क प्रिंटिंग एंड जैसे कई लोगों के डिजाइन्स मुझे बनाने होते हैं तो प्रिंट ऑन डिमांड, तो मेरा खुद का मेरे पास मशीन नहीं है प्रिंटिंग ओके की। ओके तो प्रिंटिंग की मशीन जिनके पास है उनके पास जाना, वेंडर्स को ढूंढना, टी शर्ट प्रिंट करवा के लेके आना, डिलीवरी टाइम पे पहुंचाना, ये सारी चीजों में बहुत दिक्कत हो रही है अभी मुझे। तो मैं अभी वो नेविगेट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो हर एक स्टेप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, पर आप सॉल्व करते जाते हो बिकॉज आपको उसमें मजा आ रहा है। तो मे बी आगे जाके आपके पॉडकास्ट में आपको थोड़ा और बेशरम बनना पड़ेगा, लोगों तक पहुंचना पड़ेगा कि नहीं आइए मेरे पॉडकास्ट में इंटरव्यू दीजिए, सबको रीच आउट करना पड़ेगा, हर किसी से बात करनी पड़ेगी एंड अपने आप को इक्वली उनके इक्वल लेवल पे रखना पड़ेगा कि हाँ मैं और वो सेम है, एक इंसान है एंड हम सेम लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आई थिंक ये सारे आगे जाके आपके भी लिए भी आएंगे एंड उस चीज को स्मार्टली हैंडल करना। हाँ हाँ जी, ये तो मैं जानता हूँ क्योंकि मुझे मुझे पता है कि अभी मैंने जब स्टार्ट ही किया है तो मुझे अभी बहुत इम्प्रूव करना है उसमें भी ना, बिकॉज दिस इज, मैंने जैसे आपको पहले भी जब फर्स्ट कॉल में कहा था कि दिस इज नॉट माई कंफर्ट जोन एट ऑल। मैं जब आई एम नॉट लाइक कि भाई मैं स्ट्रेंजर से फट जाके बात करूं, उस हिसाब से मैंने बट आई चोज ए पैथ कि जहां पे मुझे ये करना पड़ेगा, है ना, जी ये मेरा ड्रीम है, सो आई हैव टू डू इट। उसमें मेरा ऑप्शन नहीं है कि भाई मैं नहीं 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 मैं तो ऐसा नहीं हूँ। यू हैव टू चेंज, मतलब आपका बिहेवियर हो, आपके कैरेक्टर्स में हो, वो पर्सनैलिटी में भी चेंज आना पड़ेगा जैसे आपको, क्योंकि आपका ड्रीम डिमांड कर रहा है ना जी वो, तो आपको करना पड़ेगा। जी खुद को नहीं बदलना, इट्स लाइक, मुझे इस चीज में बहुत लोग बोलते हैं कि खुद को खुद ही रहने दो, बदलना। आई थिंक यू हैव टू चेंज। आप अभी अभी से देख लो ना, आप जब 15 साल के थे, 20 साल के थे, चेंजेस आते रहते हैं। यू चेंज ना, कि आप लाइफ एक्सपीरियंस जैसे जैसे मिलता है, यू हैव टू चेंज। अगर आप चेंज नहीं रहोगे तो वो नहीं होगा ना कभी, क्योंकि अगर मैं कह दूं कि नहीं ये तो मेरा कंफर्ट जोन है ही नहीं, ये तो मैं नहीं करूंगा, ये तो मैं कर ही नहीं सकता, आपको लिमिट पता ही नहीं है ना। आप जाकिर खान को देखते हो, जी थोड़ा बहुत देखा है, सुना है, मतलब उनके काफी उनका ना, मोटिवेशनल कोट्स होते हैं। उनका एक बहुत, मैं तो उनका फैन हूँ। लाइक मैं उनका ना एक ये पॉडकास्ट देख रहा था, उन्होंने उन्होंने एक चीज कहा था ना कि दो इंसान है, अगर एक इंसान को दोनों इंसान को ना 10 मीटर कूदना है, 10 मीटर कूदना है, और अगर एक इंसान इतना कॉन्फिडेंस है कि नहीं, उसे कॉन्फिडेंस है कि मैं कूद जाऊंगा 10 मीटर, पर उसे पता है कि शायद मैं 5 ही कूद पाऊंगा, शायद मुझे 5 ही कूद पाऊंगा, लेकिन मैं बोल देता हूं कि कोई बात नहीं मैं 10 मीटर कूद जाऊंगा। और एक इंसान जो कूद चुका है पहले 10 मीटर, पहले शायद वो उसे 100% पता है, लेकिन उसका अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इसलिए वो बोल देता है कि शायद ना कूदूं। लेकिन जब वो 10 मीटर जो कॉन्फिडेंस करके बोल रहा था ना कि भाई कूद जाऊंगा, और जिसके 5 मीटर ही कूदा अभी तक, तो वो कूदा, उसके बाद उसको 7 मीटर तक ही वो 7 मीटर तक ही कूद पाया। ठीक है, अब लोग शायद हंसेंगे, पर उसके लिए ऐसा है ना, मैं तो 5 मीटर ही कूदना, मैं तो मुझे तो लग रहा था मैं तो 5 मीटर ही कूदूंगा, पर उसने क्या किया, वो 7 मीटर कूद गया। अब उसको उसका लिमिट पता चल गया ना, भाई मेरा 5 नहीं है, मेरा 7 है ना। तो अब उसको ऐसा नहीं रहेगा कि भाई 10 मीटर, तो अगर मैंने सोचा था 5, तो अगर मैं 7 हो गया, तो अगर मैं 7 सोच रहा हूँ ना अभी, तो मैं 10 भी पहुंच ही जाऊंगा। लेकिन जो कॉन्फिडेंस नहीं था ना, वो तो कूदा ही नहीं ना, जबकि वो कूद सकता था, कूदा ही नहीं। तो दैट्स मेरा ये ना रह गया कि पहले से नहीं, कि भाई ये सही है कि आप कर सको नहीं कर सको बात का बात है, आप करते हो, पहले करके तो देखो, क्या पता आप जो सोच रहे हो ना कि भाई अरे नहीं होगा भाई, क्या पता हो गया तो, है ना, तुक्का लगे। तो कंटेंट क्रिएशन करने के लिए अभी बहुत सारे लोग आते हैं एंड दे ट्राई 2-3 वीडियो डालेंगे, वायरल नहीं होगा चलो छोड़ देते हैं। क्या पता करके देखो ना, 1 साल करके देखो, हो गया तो यू कैन बी द नेक्स्ट, यू कैन बी द नेक्स्ट बीबी के वाइन्स, या बहुत सारे लोग भी तो ऐसे ही स्टार्ट किए ना कभी भी। अब जी आई डोंट नो कि लोग क्या सोचते हैं, पर ड्रीम्स जब भी बनता है वो बहुत बड़ा लगता है, वो बहुत दूरी लगता है। अगर आपका ड्रीम्स ऐसा है कि नहीं यार, आपका, मैं ये कहता हूँ, जब आप किसी को अपना ड्रीम्स बताते हो और लोग आपके ड्रीम्स पे हंसे ना, भरोसा कर ले, तो फिर कैसा वाला ड्रीम हो गया, अरे सही बात है ना। है। आपके ड्रीम्स जब आप बताओ, है ना, किसी को बता रहे हो एंड देन वो हंस भी नहीं रहे आपके ड्रीम पे, हाँ हो जाएगा, ऐसे ड्रीम्स आर फ्री यार, ड्रीम्स फ्री में आ रहा है, आप उसको देखने के लिए भी कंजूसी कर रहे हो, एंड देन यू आर थिंकिंग कि भाई मैं बड़ा करूंगा, कुछ नहीं होगा, बिकॉज ड्रीम्स फ्री है, लो बड़ा देखो ना। अरे क्या जाता है सोचने में कि मैं इलोन मस्क से भी बड़ा बनूंगा, नहीं बनोगे कोई बात नहीं, पर इलोन मस्क के आसपास तो आ जाओगे कहीं,
है ना। तो लेकिन लोग सोचने में भी इतनी कंजूसी, मैं अपने दोस्त को सोचता हूँ या मेरे अपने भाई भी खुद है ना, उनको पूछता हूँ कि क्या करें, हम लोग का तो नहीं होगा। अरे कैसे नहीं होगा भाई, ट्राई तो करके देखो, हो सकता बिल्कुल। है। नहीं होगा वो। मैं खुद ये सोचती हूँ, मतलब मेरा ये मानना है, ये मैं चाहती हूँ अपनी लाइफ में आगे जाके करना कि मैं एलोन मस्क से बड़ी बनूं। पर ये है कि मैं किसी के सामने बोलती नहीं हूँ, क्योंकि हर किसी का यही रिस्पॉन्स आएगा कि अरे ये तो बोल रही है। आई मीन अगर आप देखेंगे तो जो फोर्ब्स में जो टॉप 10 रिचेस्ट लोग आते हैं उसमें बहुत कम औरतें हैं, मुश्किल से एक या दो। तो मेरा वही टारगेट है कि मैं उन सब में नंबर 1 पहुंचूं, इन सारे। अब जब आप ऐसे, यस यस, हम जब आप ऐसे बोलोगे ना, अभी इनफैक्ट मैं भी, हमें इनफैक्ट मैं या इंक्लूडिंग मैं कोई प्रिटेंड नहीं करना चाहता, इंक्लूडिंग मैं, हमें क्या लगता है कि, मुझे क्या लगता है कि शायद नहीं पहुंच पाएगा, ये तो ऐसे ही बोल रही है ना। लेकिन आपका विजन आपको ही पता रहता है, आपका ड्रीम से आपका विजन है, आप जहां तक जा सकते हो वो आपको पता है ना। लोग लोग बस आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कर सकती है या ये वो कर सकते हैं, लेकिन आपको जो पता है आपके बारे में वो लोगों को नहीं पता है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जब मुझे पता है ना मेरा ड्रीम्स का विजन कहाँ तक पहुंचना है, तो लोग आके ये नहीं बता सकते हैं कि भाई, लोग आके अगर बताएंगे नहीं इसमें आगे नहीं जा सकता है, तू इसमें फेल हो जाएगा या जो भी है, मैं इस चीज में भरोसा करता ही नहीं कि लोग मुझे बताए कि भाई तू फेल हो जाएगा, तू ये मत कर, तू वो मत कर। मेरे कितने सारे दोस्त हैं, मेरे एक दोस्त है जिसने मुझे ये कहा कि तू ये सब कहाँ फालतू में लगा पड़ा हुआ है, तू थोड़ा काम कर। अब बात इसको कैसे समझाऊं कि भाई मुझे काम पे मन नहीं लग रहा है, मैंने 5 साल काम करके देख लिया है, मुझे मन नहीं लग रहा है उसमें। जब मैं ये करता हूँ, भले इसमें कमाई भी ना हो, अभी कुछ कमाई भी नहीं रहा हो, पर फिर भी जब ये करता हूँ तो मुझे मजा आ रहा है। मुझे रोज उठकर वीडियो बनाना, वीडियो के बारे में ढूंढना, लोगों के पॉडकास्ट सुनना, लोगों के बारे में जानना, लोगों की कहानी सुनना, ये करना अच्छा लग रहा है। सो डेफिनेटली यही करके मुझे कुछ करना है ना। लेकिन वो लोग नहीं समझेंगे, फिर क्या बोलेंगे ना, फिर थोड़े दिन के बाद बोलेंगे, अर्जुन मेरा मजा नहीं आ रहा है यार। काम पे मजा नहीं आएगा क्योंकि वो तुम्हारा काम है भी नहीं। एंड मैं ये पॉइंट मैंने कब से सोच के रखा था कि आपको बोलूंगा, ड्रीम्स को फॉलो ना करना, इट्स लाइक कि इसका बहुत सारा डार्क साइड भी है सोसाइटी में। जैसे कि अब मैं ये कहना चाहता हूँ ना, करप्शन बहुत सारा है इंडिया में, तो बहुत सारे करप्शन है, पुलिस हो गए, इवन डॉक्टर्स हो गए, हर जगह करप्शन है। बट आई थिंक ना वन ऑफ द मेजर रीजन इज ना, अब किसी को पुलिस बनना है, उसका रीजन ये नहीं है कि उसे पुलिस बन के किसकी हेल्प करना है या फिर मैं सोसाइटी के लिए कुछ करूंगा। उसका रीजन क्या है पता है? उसका रीजन ये है कि मुझे पावर चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। अब वो उनकी भी गलती नहीं है ना। अब बचपन से जब माँ बाप सोसाइटी उनको ये बोलेंगे कि आप गवर्नमेंट सर्विस में जाओ, आप उसमें जाओ, उसमें पैसा है। एक्चुअली में तो गवर्नमेंट सर्विस जितना भी है, डॉक्टर है, मैं जैसे कि बोल रहा हूँ, डॉक्टर के फील हो गए, आर्मी के फील हो गए या पुलिस के फील हो गए, जो पब्लिक सर्वेंट्स है ना जिनके, तो उनमें प्रॉफिट देके कभी नहीं जाना चाहिए। उसमें बस अगर जिसको बनना भी है तो वो प्रॉफिट देके जो जा रहे वो रॉन्ग मोटिव होगा मेरे हिसाब से। तो वो वही भाई जा सकते हैं जिनका ड्रीम से कि भाई नहीं मेरे को लोगों का मदद करना है। क्योंकि आप उस फील्ड में ना ये लेके नहीं जा सकते कि मुझे पैसा कमाना है। इफ आपको पैसा कमाना है तो बहुत सारे ऑप्शन है, बिजनेसमैन बन जाओ। पैसा ही कमाना है तो बिजनेसमैन कर जाओ, जॉब करो, बड़े बड़े आईटी में जाओ, उसमें कमाना। पर ये कमाने के लिए नहीं है, ये लोगों को हेल्प करने के लिए। पर वहां पे क्या होता है ना, वैसे लोग जाते हैं जो कमाने के लिए जा रहे हैं। अब कमाने के लिए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली ना, पुलिस या जो भी पब्लिक सर्वेंट में सैलरी तो आपको बिजनेसमैन के जैसा तो नहीं मिलेगा। बिकॉज ऑब्वियसली वो बात सही है ना कि बिजनेसमैन जैसा करोड़ों में तो आपको मिलने वाला है नहीं। एंड देन यू स्टार्टेड टू डू करप्शन कि भाई ठीक है, ये यहाँ से पैसा लेके आऊं, वहां से, क्योंकि उनका मोटिव वो था ही नहीं ना पहले से। उनका वो ड्रीम्स ही नहीं है ना। वो तो चले गए क्योंकि सोसाइटी ने बोल दिया, मम्मी पापा ने बोल दिया, देन चले गए। अब उनका ड्रीम्स है कि भाई उनका बिजनेसमैन बनना था। मैं सोचता हूँ कि अगर वो करप्शन नहीं करके अगर बिजनेस कर लेते शायद तो बहुत कमा लेते। जब इनका इतना आइडिया है कि इतना छिप के ये लोग सिस्टम को ही करप्ट करके भी पैसा लेके जा रहे हैं, तो इनका यही बिजनेस में अगर करते तो कितना सही होता। आई थिंक वन ऑफ द रीजन यही मुझे लगता है कि लोगों को ड्रीम फॉलो ना करने का ना सबसे डार्क साइड यही है कि सोसाइटी में भी यही होता है। बिकॉज आप यूएस में चले जाओ या कहाँ पे ना, यूएस पे चले जाओ या बाहर जहां भी आप ड्रीम्स के बारे में बात करोगे उतना ऑकवर्ड फील नहीं होता है कि आपको क्या बनना है। एंड देन दे आर लाइक हाँ ड्रीम्स को फॉलो करना चाहिए। इंडिया में जब आप पूछोगे ना किसी को आपको क्या करना है, भाई ये हो, उनको पहले तो ये
अजीब लगता है कि ड्रीम्स को फॉलो करना भी अजीब लगता है, बिकॉज आप और हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि न्यू जनरेशन, आई थिंक वो न्यू जनरेशन का कहीं ना कहीं हम लोग के पेरेंट्स, कहीं ना कहीं हम लोग के सराउंडिंग ऐसे है कि हम लोग को सही लग रहा है कि भाई ठीक है, एंड उसमें बहुत सारा हाथ तो सोशल मीडिया का भी है जो आज हम लोग को बताते हैं कि भाई ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे जेनजी जो भी जेनजी हो गए या हम लोगों की एज ग्रुप के हो गए कि भाई वो बैठ रहे हैं ना वहां पे, एंड देन वो करके दिखा रहे हैं, देन वी विल फील लाइक कि भाई चलो करते हैं, सही है ना। सो इस चीज को मैं इसलिए मैं बोलता हूँ कि ड्रीम्स, आई थिंक इट्स वेरी नेसेसरी। आप देखो ड्रीम्स भले पूरे होते नहीं होते उसका टेंशन मत लो, करना स्टार्ट करो ना। आपको कुछ भी बन सकता है यार, कोई भी। ये कोई लिख के नहीं आ रहा है कि ये किस्मत की बात है, नहीं है, आपकी मेहनत की बात है ना, आप करोगे हो मैं जाएगा। एक और नहीं पॉइंट हो, ऐड करना चाहूंगी हाँ जी, हाँ जी। कि जो आप बोल रहे हैं कि कि मम्मी पापा हमारे जो पहले की जनरेशन है वो इस तरीके से नहीं सोचते थे एंड हमारी जनरेशन सोच रही है, तो मुझे लगता है उसके पीछे का भी रीजन है कि हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स, मुगल्स, हर कोई उनको रूल किया है। तो जो भी इंडिया के लोग हैं, जो हमारे माँ बाप हैं, उनके पहले की जो जनरेशन है, हमारी दादाजी लोग, हर किसी ने स्लेवरी देखी है, जिनके कारण उनका एक माइंडसेट है कि वो सर्वाइवल मोड में है। मतलब कि भाई आप एक अच्छी नौकरी कर लो, आपके आपके ऊपर रहने के लिए छत हो, खाना आ जाए, बस इतनी ही लाइफ को बहुत अच्छा माना जाता है। कि आप चलो इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि चलो इंजीनियर और डॉक्टर ऐसा प्रोफेशन है जहां से पैसा हमेशा आता रहेगा, लोगों को चीजें बनाने की भी जरूरत पड़ेगी और लोग बीमार भी होंगे, और आपके पास, मतलब उनको बस ये चाहिए था कि एक स्टेबिलिटी हो। तो जब जो इंसान हमेशा एकदम फाइटिंग मोड में रहा, एकदम स्लेवरी मोड में रहा कि भाई पूरे टाइम गुलामी, फाइटिंग, ये सब कुछ चल रहा है, तो वो उस जगह से निकल के सबसे पहले जो चीज देखता है कि हम स्टेबल हो। तो हमारी जो माँ बाप की मम्मी पापा की जनरेशन थी, वो ये था कि हमें स्टेबल होना है, स्टेबल होना है। तो हमारी जनरेशन को वो स्टेबिलिटी क्योंकि पहले से मिली कि हाँ एक अच्छा एनवायरनमेंट है, कहीं कोई वॉर नहीं, कहीं एग्जैक्टली, कोई हाँ स्ट्रगल नहीं हाँ है, तो हाँ। हमको वो प्लेटफॉर्म मिला कि हम सपने देख सके और हम उन सपनों को पूरा करने के लिए वो करेज और वो हिम्मत ला सके, क्योंकि हमने वो नहीं झेला है जो हमारे पहले जनरेशन ने झेला है। करेक्ट। हाँ जी, हाँ जी, ये सही है। अगर शायद ऐसा होता कि अगर मैं अपने पापा की जगह होता तो मैं भी यही बोलता, है ना, अपने बच्चे को, क्योंकि हम लोग ने उस चीज को नहीं झेला। अब वो लोग उस चीज को झेल चुके हैं, इसलिए वो कर रहे हैं स्टेबल जॉब, तब जाके हम लोग कर पा रहे हैं ये सब। बिल्कुल। तो नहीं तो हम भी अभी ऐसे ड्रीम्स के ये सब बात नहीं करते ना। एग्जैक्टली, आई मीन हम अभी या हमें जो जरूरत है वो ये है कि हमारे जो मम्मी पापा हैं, उनकी जो पूरी जनरेशन है, वो ये चीज समझे कि हाँ भाई हमारे बच्चों को वो माहौल, वो एनवायरनमेंट नहीं मिला जो हमें मिला। तो उनको हम खुला छोड़े, हम उनकी चीजें समझे कि हाँ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो उड़ना चाहते हैं, तो हम हैं यहाँ उनके सपोर्ट के लिए कि बच्चों तुम जाओ, तुम करो, आज की दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है, तुम कर सकते हो। तो वो चीज हमारे जो मम्मी पापा है, उनको ये चीज चेंज करने की जरूरत है कि हाँ उनका माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है कि हमारी दुनिया कुछ और थी, अभी दुनिया कुछ और है। एंड हमें ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की जरूरत है हमारी जनरेशन को कि हमारे माँ बाप हमें पूरे तरीके से नहीं समझ पाएंगे, हो सकता है वो कभी ना समझ पाए, क्योंकि उनकी उनकी अपब्रिंगिंग अलग थी, उनका एनवायरमेंट अलग था। पर हम उन पे भरोसा रख के, उनका जो नीयत है वो अच्छी है, बस हमारा ख्याल रखना चाहते हैं, ये देख के हम उनको समझें। पर उनकी एडवाइस ना कंसिडर करें कि हाँ भाई रुक जाओ, अपने आप को रोको, नहीं, हम आगे बढ़ेंगे और हम हमारे माँ बाप के साथ हैं। तो वो दोनों चीजों को साथ लेके चलने की जरूरत है, मुझे लगता है। और ये भी आपने कहा, पर कुछ कुछ पेरेंट्स ना, आई थिंक, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, पर कुछ कुछ पेरेंट्स होते हैं, आई थिंक उनसे उनसे वो कभी नहीं समझ पाएंगे, वो ड्रीम्स आपके समझ ही नहीं पाएंगे, है ना। तो मुझे लगता है थोड़ा रिबेल बनना पड़ेगा अगर आपका ड्रीम्स ऐसा। लेकिन ऐसा भी नहीं है ना कि आपको आपके पेरेंट्स ने बोल दिया तो आप उनको क्या बोलते हैं, आप लड़ाई करना स्टार्ट कर दो। हाँ। तो मैं उनके लिए बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके पेरेंट्स ऐसे बोल रहे हैं, देन जस्ट डू वन थिंग, कि आप किसी तरह भी एक कमाई का सोर्स ढूंढो, अपना अपना रूम ढूंढो, जैसे भी तैसे भी करके कहीं से भी कुछ करो, एंड देन पहले तो एक एक शेल्टर ले लो और जॉब ले लो और बैठ जाओ। उसके बाद थोड़े से रिबल बनना पड़ेगा, माँ बाप के खिलाफ भी कभी कभी जाना पड़ेगा। अगर कोई माँ बाप आपके ड्रीम समझ ही नहीं रहे और आपको भरोसा है कि नहीं ये हो जाएगा, आपके माँ बाप को आपने 1000 बार समझा दिया, नहीं समझ रहे हैं कि नहीं नहीं तुम तो ये करोगे, तो यू हैव टू बी कि भाई रिबेल थोड़ा करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, बाहर दुनिया देखना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा। आई थिंक सही बात है। सभी के नहीं मानेंगे, स्पेशली मैं ये बोलना चाहूंगा वो लड़कों के लिए तो फिर भी आसान है। कहीं ना कहीं ये बहुत आसान है कि लड़कों के लिए फिर भी वो बोल देंगे कि भाई चले जाऊंगा यहाँ से, है ना। लड़कियों के लिए स्पेशली, एंड व्हेन आई से कि भाई रिबेल करना पड़ेगा, मैं स्पेशली बोलना चाहूंगा कि लड़कियों के लिए, बिकॉज ना
इंडिया एज ए प्लेस अभी भी, आप मानो, लोग माने या ना माने, लोग बहुत सारे बोलते कि नहीं है, आप लोगों ने गांव गांव में जाके देखे नहीं है किस हालत में है औरतें. इट्स लाइक दे आर स्टिल लाइक वो ब्रिटिश में स्लेव रखते हैं ना, हाँ, ऐसे भी जगह जगह मैंने मैं खुद देख के आया हूँ. मैं खुद देख के आया हूँ. आई वाज लाइक कि भाई यहाँ पे तो नहीं हुआ है ना डेवलपमेंट, यहाँ पे कहाँ हुआ है. सही बात। अगर इन औरतों को पता भी नहीं है कि ये क्या कर सकते थे इनके लाइफ के साथ. आज जैसे कि मैं मेरा मम्मी को पूछता हूँ ना कभी कि आपको लाइफ में क्या, अब ये सवाल बहुत सारे लोग नहीं पूछते, हाँ, पर मैं चाहता हूँ कि ना सभी लोग अगर सभी को देख रहे हो ना, तो एक सवाल जाके अपने अपने पापा को, तो सबको पता है यार, पापा वो भी कर रहे होंगे, पापा ये भी करेंगे, पर माँ को जाके एक बार पूछ के देखो ना कि माँ को एक मिनट यार, माँ को ना एक बार जाके पूछ के देखो कि मम्मी आपको क्या बनना था. एंड यू विल रियलाइज ना, जब मैंने मम्मी को ये पूछा ना, माई मदर हैज टू थिंक कि भाई उनको वो प्रोसेस में चली गई है ना, शी वाज थिंकिंग दैट व्हाट शी वांट टू बी. और इतने साल बीत गई, कोई किसने शायद पूछा भी नहीं ना ये सवाल, तो इतने वो थिंक करने लग गई. एंड देन सी आफ्टर थिंकिंग सो मच, उनको बोला था कि मुझे हिंदी टीचर बनना था. एंड शी इज गुड एट हिंदी वो बहुत है ना. देन आई वाज लाइक कि भाई, तब से मेरा ये आ रहा है कि भाई, आई वाज लाइक कि भाई यार, सच में हम लड़कों के लिए तो आसान है ये कहना, क्योंकि मेरे पापा को कार्स बहुत पसंद है, कार्स के काम करना, तो वो मैकेनिक्स भी बने, कार के मैकेनिक्स का काम भी किया, क्योंकि उनको वो पसंद था. उन्होंने किया, वो गैरेज में काम किया, उन्होंने ड्राइविंग किया, उनको कार्स के बारे में बहुत अच्छा लगता है, तो उन्होंने किया वो. लेकिन मम्मी तो अभी भी तो घर में ही बैठ के वो अभी कुकिंग ही कर रहे हैं ना, पर वो बोलती है कि मुझे कुकिंग भी पसंद है, मुझे गार्डनिंग भी पसंद है. पर उनका जो सपना था ना, जब वो रुकी ना वो सोचने के लिए, देन आई वाज स्ट्रक कि यार इनको कुछ ने पूछा नहीं क्या इतने सालों में. एंड आई वाज लाइक, दैट टाइम आई वाज रियलाइज कि भाई इंडिया इज रियली, मतलब बहुत पीछे है. बहुत ज्यादा पीछे. आई मीन मुझे भी अपना घर परिवार छोड़ के यहाँ आना पड़ा बैंगलोर, क्योंकि मैं जिस परिवार से आती हूँ वहां पे लड़कियों की शादी 24 साल में करा दी जाती है, और मैं अभी 26 की हूँ. तो हमारे परिवार में लड़कियों को एक टाइम पे जॉब होनी चाहिए, एक टाइम पे पढ़ाई होनी चाहिए, और फिर शादी की भी उम्र तय होती है कि इतने साल के हो तो आप शादी करो, इतने साल के हो तो बच्चा करो. हर एक चीज सोसाइटी, माँ बाप, रिलेटिव्स, हर कोई तय करके रखता है कि हाँ भाई. तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा सिस्टम इस तरीके से इंडिया का है कि औरतें कहीं ना कहीं बन जाती हैं. और मैं खुद अपनी मम्मी से ये क्वेश्चन की हूँ जो आपने किया कि कि आप क्या बनना चाहते हो, अगर आपकी शादी नहीं हुई होती तो आप क्या होती, आप क्या करती लाइफ में. तो उन्होंने यही कहा कि उनको पॉलिटिकल साइंस बहुत पसंद था, उनको राजनीति में बहुत इंटरेस्ट था, और वो आगे वो करना चाहती थी. पर वही होता है कि पहले शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं, फिर आप बस घर संभालते हो, और आपकी पूरी दुनिया ही आपका घर हो जाती है. तो मैं ये चाहती थी कि जो हमारे देश की औरतें वो घर से बाहर निकले, देखें कि हाँ घर संभालना है, पर उसके अलावा बाहर बहुत कुछ है. आप अपना पैशन, अपनी ड्रीम अचीव कर सकते हो कभी भी, किसी भी एज में. मतलब मैं तो अभी भी जो 40 साल की, 50 साल की जो औरतें हैं, उनको 75 साल की औरतों को अपना ड्रीम जीते हुए देखती हूँ. मतलब मैं इंडिया से बाहर गई थी और मैंने देखा कि एक 75 साल की बूढ़ी औरत बाहर डेट पे जा रही है एक 80 साल के बुढ़े आदमी के साथ, और दोनों ही बुढ़ा बुढ़ी फ्रॉक पहन के, मतलब जो लेडी है, मतलब जो बुढ़ी औरत थी, वो फ्रॉक पहनी हुई थी, बहुत सुंदर से तैयार होके, मेकअप वेकअप करके, एक हाथ में कोल्ड कॉफी लेके. एंड वहां पे जो बुढ़े अंकल हैं, वो ऐसे पूरा प्रॉपर सूट वूट पहन के दोनों बाहर पार्क पे निकले कि चलो आज बस डेटिंग करेंगे, मतलब एक दूसरे से रोमांस करेंगे, और वो भी उस एज में जाके. तो मुझे ऐसा लगा कि अगर वो पॉसिबल है उस कंट्री में, यूरोप में ऐसा पॉसिबल है, तो इंडिया में क्यों नहीं. अगर अभी भी हम मोटिवेट करें हमारे जो औरतें हैं, जो अंकल्स हैं, हर किसी को, चाहे वो कोई भी एज हो, एज मैटर नहीं करता. आप ड्रीम देखो एंड वो चीज को अचीव करो, चाहे वो ड्रीम बाहर घूमने ही जाना क्यों ना हो. ये कॉमन वही है ना कि लड़कियों को जितना समझाने से ज्यादा ना, आई थिंक लड़कों लोगों को ज्यादा समझाना पड़ेगा. ये समझाना पड़ेगा कि वो जैसे हम ट्रीट करके आ रहे थे वो सही नहीं है. आई थिंक वो सही नहीं. आज भी मेरे घर में मेरे खुद के सिस्टर्स है ना, तो या कजन से मैं उनको देखता हूँ, एंड दे वो कोई कजन्स तो इतना अंडर कॉन्फिडेंट है. क्यों? क्योंकि माँ बाप ने कभी जाने ही नहीं दिया ना, उसमें पार्टिसिपेट करने दो, डांस में पार्टिसिपेट करने दो. बच्चे के लिए मैं हमेशा अपने जितने भी कजन्स को मैं कहता हूँ कि तुम लोग स्कूल में जितना भी फंक्शन होता है सब में पार्टिसिपेट लो. इट डजंट मैटर तुम अच्छे गाओ या ना गाओ, तुम पार्टिसिपेट करो.
तुम बस करो, क्योंकि लाइफ में आगे कुछ काम ना आए या कुछ काम आएगा नहीं आएगा पता नहीं है, ये स्टडी काम आएगा कि नहीं पता, पर कॉन्फिडेंस काम आ जाएगा। क्योंकि अगर तुम सिर्फ इतना सीख लिए ना कि भाई कोई चीज को भी हाँ मैं करूंगा, मैं करके देखता हूँ, तुम अगर इतना कर लिए ना तो तुम आगे कुछ भी कर सकते हो, बिकॉज तुम वही कैटेगरी में आ जाओगे ना। फिर तुम 10 मीटर जैसे नहीं कूद सकते थे, तुम बोलोगे भाई मैं 10 मीटर कूद बिल्कुल सकता हूँ, बिल्कुल। तुम उस कैटेगरी में आ जाओगे, तो तुम अपॉर्चुनिटी लेना स्टार्ट करोगे। पर मेरे घर में भी आई थिंक, मैं ये छुपाने की वाली बात नहीं है, सभी के घर में भी ऐसे ही है कि वुमेन को ऐसे ड्रीम वो पकड़ना या उस ड्रीम को जीना ना, ऐसे वो टीनेजर से स्टार्ट हो जाता है कि वो पाबंदी लगाने की तुमको हाँ, बाहर नहीं जाना है, तुमको ये मतलब नहीं कभी करना है, बाहर, घर के तुमको बाहर नहीं निकलने अकेले दिया तो फिर सपना क्या ही देखने देंगे कि कुछ तुम कर भी सकते हो। वो सोच हाँ ही नहीं आती। ऑब्वियसली, जब वो मतलब दुनिया ही नहीं देख रहा है। मैं आज से 6 साल पहले कैसी थी, मैं बस कॉलेज में थी और मेरा बस इतना सपना था कि हाँ कॉलेज खत्म होगी, मेरी शादी होगी, मेरे 2 बच्चे होंगे। उसके आगे कोई अंदाजा नहीं था क्या करना है लाइफ में। मतलब मैं खुद एक घर में हमेशा रहने के कारण मैं कभी ये सोची नहीं थी कि मैं कोई सपना देख सकती हूँ, उस चीज पे काम कर सकती हूँ। तो बहुत लिमिटेड सोच थी मेरी और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कुछ कर भी पाऊंगी लाइफ में। तो 5 साल में जो मेरे अंदर बदलाव आया है और जितनी ग्रोथ हुई है, इट्स ऑल बिकॉज मैं बाहर निकली है, मैंने एक्सपोजर दिया। तो जो पॉइंट आप बोलना चाह रहे हैं, मुझे लगता है कि ये मैं हर लड़की के लिए, इस देश की हर लड़की के लिए बोलना चाहूंगी कि चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, आप सपने देखो। अगर आप वो 10 का सोचोगे, जैसा आपने कहा था 10 का सोचोगे, तो कम से कम 7 तक तो पहुंचोगे। एंड उसके लिए मुझे लगता है 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं हर किसी के लिए समराइज करना चाहती हूँ। पहला तो कि आपके पास ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर कि कुछ भी हो जाए मैं कर लूंगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेलियर आएगा, कुछ भी होगा, मैं संभाल लूंगी। एंड दूसरा रेजिलियंस, कि हार नहीं मानना है। भरोसा रखो और हार नहीं मानो। तो उससे क्या होगा, अगर आपको भरोसा है और अगर आप हार नहीं मान रहे हो, तो आप कितनी बार भी फेल हो, रिजेक्ट हो, आप आगे बढ़ते जाओगे। बिकॉज एज अ लड़की मैंने ये चीज देखा है कि जो दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं जानती थी, वो घर से बाहर निकली, उसने 10 धोखे खाए। मतलब मुझे कहीं, मेरे साथ हम्म। फ्रॉड हुए बहुत सारे। कोई कुछ भरोसा बोल के जा रहा है, हाउस रेंट को लेके फ्रॉड हुआ, मेरे को कंपनी को लेके फ्रॉड हुआ। लाइक बहुत सारे अलग अलग टाइप के धोखे मिले लाइफ में। एंड तब हर एक एक ठोकर खा के सीखने मिला कि हाँ ये असली दुनिया है। अभी तक तो मैं घर के अंदर बंद थी। तो ये होता है जब आप आगे बढ़ते हो। तो मुश्किलें हर मोड़ पर है, पर अगर आप ड्रीम बिग करो तो आप बिल्कुल उस चीज पे लगे रह सकते हो। यस ऑफ कोर्स, और यही है ना कि करना पड़ेगा। इफ आपका ड्रीम एक है, और मैं सिर्फ ये लड़कियों लोग की नहीं, सबके लिए, घर से जितने भी लोग, जितने भी यंग एज के लड़के हैं जो अभी एडल्ट हो चुके हैं ना, जिनको घर से बाहर निकलो। माँ बाप के घर एक बार तो सही छोड़ना बात पड़ेगा, है। तुम जाओ, तुम माँ बाप के घर छोड़ के थोड़ा सा दूर जाओ, एंड देन यू ट्रैवल, लोगों से मिलो, लोगों से बात करो, नए लोग। आई थिंक इफ तुम लोगों को कुछ भी नहीं आता ना, जस्ट गो समवेयर जहाँ पे सेल्स का काम हो, तुम सेल्स में चले जाओ। वहां पे जो नए नए लोग आएंगे ना, उनको सेल्स करो, उनसे बात करो। यू विल मीट सो मेनी पीपल ना, तब तुमको समझ आ जाएगा कि भाई ड्रीम्स होते, दुनिया सिर्फ वो 4 दीवारें नहीं है, एग्जैक्टली, दुनिया सिर्फ वो एक्सपोजर की सिविल जरूरत है सिविल जॉब। इंसान को। आप जो बोलना चाह रहे हैं, आई थिंक एक लाइन में है कि बाहर निकलो, एक्सप्लोर करो, लोगों से मिलो। एक्सप्लोर करो, एग्जैक्टली। बिकॉज नहीं पता लगेगा ना, 10 कहानियां सुनोगे तब पता लगेगा, अच्छा ये कर सकते हैं तो हमें भी कर सकता हूँ, शायद मुझे भी ये आ जाए या मुझे भी इंटरेस्ट आ जाए। मतलब वो ये चीज है ना, पर लोग शायद बहुत डरते भी है। इसका ये कारण भी है कि डरा के रख दिया है कि भाई बाहर मत निकलना। वो अब सही ऑब्वियसली इंडिया ऐसे कंट्री, आपको पता ही है, सही सेफ बात भी है, नहीं बिल्कुल। है मतलब ना। ऐसे लड़की लोग के लिए सेफ भी, वो भी एक कंसर्न है। पर ऐसा तो नहीं है ना कि आप आप डर के मारे तो आप कुछ करो ही ना, तो फिर वो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। हाँ, एग्जैक्टली। स्टे सेफ, पर करो करो, है ना। वो अपना राइट्स वगैरह पता लगना चाहिए, या अपना कब ऐसे सिचुएशन में आ जाओ, कब सही ऐसे बात है। कब इस माहौल में आ जाओ, उसके लिए भी तैयार रहो। पर साइड में जो ड्रीम है उसको लो एंड ट्रैवल करो, उतना ही है ना। बाकी बाकी तो यार, मर के तो आपको भी जाना है, मुझे भी जाना है, एक दिन चले जाना है ना। उसमें कोई चेंज तो नहीं कर सकता, नहीं मैं तो नहीं मरने वाला हूँ, वो तो चले जाना, उससे पहले अचीव कर लो, मतलब कि आप अगर है ना। अपनी लाइफ जी रहे हो, तो क्यों आपको बस जिंदगी भर एक ही काम करके, जो काम बस आप पैसे कमाने के लिए कर रहे हो, बस वही सेम कि हाँ सवेरे उठे काम किए शाम को आए, मतलब वही वही क्यों करना है। थोड़ा अलग हटके आप अपने ड्रीम पे काम कर सकते हो। अलग करो, हाँ। बिल्कुल। ये नहीं है ना कि भाई कुकिंग कुकिंग सिर्फ उसके लिए नहीं, मुझे कुकिंग पसंद है तो मैं क्या करूँ। तुम कुकिंग पसंद है तो तुम उसको मोनेटाइज कराओ, तुम उससे भी कुछ कर सकते हो ना। मैंने बहुत सारे क्लाउड किचन खोलते हुए देखे, वुमेन के जो स्टार्ट किया, एंड देयर आर यूट्यूबर्स लाइक कविता किचन, और बहुत सारे हैं। मैंने एक कविता किचन को मैं बहुत फॉलो करता हूँ। वो
वो बनाती रहती है, वो कुछ कुछ बनाएगी एंड देन शी अपलोड एंड शी हैज मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स। तो उन्होंने भी तो उसी से स्टार्ट किया ना, उन्हें कुकिंग पसंद था, उन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने कहीं स्टार्ट किया एंड देन शी आज आज वही बोलते हैं कि हर चीज आज इस कंटेंट के जमाने में आई थिंक ऐसा कोई चीज नहीं है जो कंटेंट नहीं बन सकता। मैं रिसेंटली मेरे पापा के मोबाइल में पापा मोबाइल में देख रहे थे, तो एक औरत आई, वो बोलता है कि वो किस चीज में कंटेंट बनाता है आपको बिलीव नहीं होगा, वो चुगली में कंटेंट बनाती है। मतलब आज मैं चुगली करने आई हूँ, मैं आज कि भाई ये भी कंटेंट बन गया क्या? बोला हाँ ये भी कंटेंट है। बोला कि चलो कमा दी है, वो लोग इसमें कमेंट्स कर रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं, तो वायरल हो गया ना वो। तो मुझे लगता है कि यार हर चीज कंटेंट बन सकता है अनलेस आप चाहो तो। आप ये नहीं कि सभी चुगली करने बैठ जाओ, बट जिसमें अच्छे हो कंटेंट बनाओ। आई थिंक कंटेंट इज वन ऑफ द आई थिंक बहुत आगे चलेगा। और कंटेंट का एक चीज मुझे सही लगता है ना कि यहाँ पे कोई नेपोटिज्म नहीं होगा। सही बात है। जहाँ पे आपको ये नहीं होगा कि भाई यहाँ पे कि आप पैसे वाले हो तो आपको लेकर, ये सभी के लिए सही बात है ना। सही बात है। बहुत सारे लोगों के लाइफ चेंज हुए। हाँ, सो कंटेंट में मैं लड़के लोग को जितने अपने माँ बाप से लड़ लो भाई, कुछ कर लो, कुछ भी कर लो, कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करो। जो चीज पसंद है उसमें कंटेंट क्रिएट स्टार्ट करना कर लो। जब उसमें काम करोगे तो अगर तुमको आगे जाके कंटेंट क्रिएशन नहीं भी करना होगा ना, तब भी तुमको रास्ता नजर आ जाएगा। लोगों से कनेक्ट करोगे तो रास्ता नजर आ जाएगा। अच्छा जी, जोई जी, अभी हम इसमें चलते हैं, हाँ, ठीक है। टी शर्ट्स में चलते हैं कि ओके, आपके पास आपने जैसे स्टार्ट किया टी शर्ट्स के, अब मान लीजिए जैसे कि मैंने कहा था कि मेरा एक दोस्त है, ठीक है, उनको अब टी शर्ट्स का बिजनेस करना है, या बहुत सारे औरतें जो आपको देख रहे हैं उनको भी आपकी तरह कुछ टी शर्ट्स के बिजनेस करने हैं, टी शर्ट्स के रिलेटेड करने हैं, अपना प्रिंट ऑन डिमांड या वगैरह जो भी है। तो उनको एक आप गाइड कर पाओगे स्टार्टिंग से लेके, शुरुआत से लेके कैसे करना होगा, उनको स्टार्ट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या टूल्स चाहिए होंगे, क्या क्या कैसा माइंडसेट चाहिए, वो सारी आप बता सकोगे तो बहुत सारी हेल्प हो जाएंगी लोगों के लिए। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैंने ऐसे शुरुआत की कि मुझे डिज़ाइंस चाहिए थे, तो मैंने डिज़ाइंस बनाना शुरू किया, बस्तर आर्ट के स्केचेस बनाना शुरू किए एंड एक बार वो स्केच रेडी थे, उसके बाद मैं क्योंकि पहले ये था कि अभी तक मेरा यही है कि मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रही थी जो कि मतलब जैसे मैं एक स्मॉल बिजनेस होंगी, क्योंकि मैं अगर अभी शुरू कर रही हूँ तो मैं ऐसे स्मॉल वेंडर्स को ढूंढ रही थी जो कि लाइक मेरे ही कॉलोनी में, मेरे ही आसपास ऐसे लोग हैं जो कि प्रिंटिंग करते हैं बल्क में टी शर्ट्स मंगा के, और अभी अभी शुरू किया है जिन्होंने। बिकॉज मुझे लगता है कि एक छोटा बिजनेस दूसरे छोटे बिजनेस की हेल्प करे तो आप एक्चुअली में बहुत सारा कॉस्ट बचा सकते हो एंड एक दूसरे के साथ पैशन से एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हो, बजाय कि आप कोई बड़ी फर्म के पास जाओ, आप उनसे ऑर्डर लो तो उससे पैसा भी बहुत ज्यादा लगता है। तो मैंने कैसे शुरू किया कि मैं एक प्रिंटिंग वाली कंपनी को ढूंढी जो अभी शुरू हुई थी एंड वो भी एक औरत ने ही शुरू किया था, उनका नाम विनीता है। तो उनको मैंने रीच आउट किया, मैंने उनको बोला कि देखिए ये मेरा आइडिया है और मैं बस चाहती हूँ कि आप 20 टी शर्ट मुझे बना के दीजिए, मैं बस एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ। तो मैंने बस वो 20 टी शर्ट ली, उसको ले जाके मैंने सड़क पे बेचना शुरू किया, ऑनलाइन लोगों को इंस्टाग्राम में बताना शुरू किया कि हाँ ये मेरा प्रोडक्ट है। तो बेसिकली मैं लोगों को ये बोलना, अगर मुझे सजेस्ट करना हो किसी को, आपके दोस्त को, तो मैं बोलूंगी पहले छोटी क्वांटिटी बनाओ, एक्सपेरिमेंट करके देखो कि लोगों को क्या वो पसंद आ रहा है। क्योंकि मुझे उससे बहुत सीखने को मिला कि हाँ, लोगों को डिजाइन बैक में नहीं फ्रंट में चाहिए, लोगो सामने अच्छा नहीं लग रहा है, पीछे गले के पास अच्छा लग रहा है, जहाँ छोटा हो ना दिखे लोगो, क्योंकि लोगों को डिजाइन से मतलब है ना कि कंपनी के लोगो से। तो मुझे बहुत सारी चीजें मार्केट से फीडबैक मिला, मुझे समझ आया कि किस टाइप के लोगों को, किस एज के लोगों को क्या प्रोडक्ट पसंद आएगा। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप अपने बिजनेस को जो शुरू कर रहे हो उसका आप एक छोटा सा क्वांटिटी बनाओ। इवन अगर वो कोई सॉफ्टवेयर का बिजनेस होता तो पहले आप अपना प्लेटफॉर्म बनाते एंड 20 यूजर्स को लेके आते कि हाँ 20 या 10 लोग हैं जो यूज करके देख रहे कि हाँ उनको लग कैसा रहा है। बेसिकली एक छोटी सी शुरुआत करके आपको एक टेस्टिंग करनी होती है कि हाँ मेरा प्रोडक्ट कैसा जा रहा है, क्या वो आगे बढ़ रहा है, क्या फीडबैक है। हाँ जी, तो आपने कहा कि पहले वेंडर्स को हम लोग अप्रोच करें जाके एंड देन जैसे अपने जो भी डिजाइन से आपको थोड़ा कम से स्टार्ट करना, ठीक है ना, आपने वो कहा। इसके बाद आप उसके बाद क्या करें आगे? उसके बाद आगे जैसे कि लेके आपने जाइए देख और लिया वो बेचिए। हाँ जी, उसमें से आप कैसे सेलेक्ट कर, आप कैसे कर पाओगे कि भाई नहीं आप स्केल कर सकते हैं बोल के? जैसे भरोसा आ जाता है ना कि ये डिजाइन वर्क करेगा, वो डिजाइन वर्क नहीं करेगा, या समझ आ जाएगा कि भाई ये कैसे करना है, या कुछ कौन सा नया चीज लाना है उसमें से, तो ये आपको कैसे समझ आ गया कि भाई एग्जैक्टली यही करना है बोल के?
मुझे पर्सनली जो मेरे 5 डिज़ाइन्स थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मैं वो 5 डिज़ाइन्स को प्रिंट कराई, बाहर लेके गई और देखी कि उसमें से कौन-सा 2 या 3 है जो लोगों को पसंद आ रहा है, जिससे लोग कनेक्ट हो रहे हैं। ओके, और बेसिकली उसके बाद फीडबैक्स में ही ना। फिर एंड एग्ज़ैक्टली आई एंड थिंक आप यही करते हो कि आप अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग हो, चाहे आपका मार्केट में आप कोई भी प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, सब कुछ डिपेंड करता है कि जनता क्या चाहती है। हो सकता है कि आप कोई नया बिज़नेस भी शुरू और कर रहे हो, आपको लग रहा है कि अरे मेरा आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं जस्ट बातें खोलूँगा, मैं उसमें मोटिवेशनल बातें करूँगा, लोगों से इंस्पिरेशन लूँगा, लोगों को इंस्पिरेशन दूँगा। पर व्हाट इफ लोगों को ये लग रहा है कि यार ये तो खाली सुनने की बातें हैं, मुझे तो रियलिटी जाननी है। तो फिर आपने एक दूसरा आइडिया शुरू किया, वो हाँ है जी, जस्ट जस्ट द ड्रीम्स वाला, जो आपका अभी का पॉडकास्ट है। तो उसमें लोगों को एक्चुअल हाँ जी, एक्सपीरियंसेस हाँ जी। सुनने मिलेंगे कि कि हाँ, एक्चुअली में लोगों के साथ क्या हो रहा है। एक कॉमन इंसान की लाइफ में क्या दिक्कतें आ रही हैं, वो कैसे आगे अपने ड्रीम की तरफ काम कर रहे हैं। तो ये लोगों से एक्चुअली और ज़्यादा रियलिटी में कनेक्ट होता है। तो ये अब आपकी ऑडियंस डिसाइड करेगी क्या उनको ये आइडिया पसंद आ रहा है। वैसे ही मेरा था कि भाई मेरा बिज़नेस है, मेरे पास 4 डिज़ाइन है, मैं बाहर लेके गई मार्केट में, ऑफ़लाइन गई, लोगों से पूछा। कई लोगों को तो बस दिखाया डिज़ाइन कि ठीक है आपको नहीं खरीदना, आप मत खरीदो, बस बता दो कि अगर आपको इन सब में से कौन-सा अच्छा लग रहा है। जैसे अभी क्रिसमस आने वाला है तो मैं क्रिसमस के लिए भी नए डिज़ाइन्स लेके आ रही हूँ। तो मैं लोगों से पूछ रही हूँ कि हाँ, उनको क्रिसमस का कौन-सा डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आ रहा है? वो क्या क्रिसमस के लिए इस टाइप का स्केच वाला कोई आर्ट खरीदना चाहेंगे कि भी नहीं 1-2 दिन के पहनने के लिए? तो सब कुछ मैं जनता के ऊपर छोड़ती हूँ, उनसे वोट लेती हूँ, जैसे यहाँ के पॉलिटिशियंस लेते हैं जनता से वोट, वैसे कि आपको क्या पसंद नहीं, है? नहीं, सही है। बताइए, और एट लास्ट आप ही को बेचना है। आप ये रिकमेंड हाँ, करेक्ट। और आप ये भी मुझे लगता है ये भी आजकल थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, कंटेंट क्रिएट करना अपने बिज़नेस के इर्द-गिर्द कंटेंट क्रिएट करना। उससे भी आई थिंक ऑनलाइन भी आपको काफ़ी फीडबैक मिलते हैं, जिससे आपको हेल्प हो जाता बिल्कुल, बिल्कुल। लोग है ना? ऑनलाइन, क्योंकि अब ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन के कारण कनेक्टिविटी इतनी बढ़ गई है कि हाँ, मुझे अब अलग-अलग टाइप के लोगों के अलग-अलग फीडबैक आते हैं। किसी को कुछ पसंद आ रहा है, किसी को कुछ पसंद आ रहा है, तो इम्प्रूवमेंट की चांसेस भी और अच्छी हैं आपके बिज़नेस में। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपका कोई टी-शर्ट का बिज़नेस है, तो आप ऑनलाइन इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक अकाउंट ये सब खोलो, वहाँ लोगों के लिए डिज़ाइन्स डालो एंड लोगों के फीडबैक्स लो वहाँ से। और सिर्फ ऐसा मत करो कि खाली ओके। ऑनलाइन ही करो, एक ऑफलाइन भी तो रहना चाहिए, क्योंकि एक ओरिजिनल तरीका भी होता है ना कि जब कोई इंसान हाँ, कपड़ा टच करता है, छू के देखता है कि अरे ये कॉटन की क्वालिटी कितनी अच्छी है, ये डिज़ाइन कैसा है, तो वो एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है जो कि लोगों के लिए ये होता है कि हाँ यार, इसका कॉटन अच्छा है, इसका डिज़ाइन अच्छा है, इसको अभी तुरंत खरीद लेते हैं। तो वो एक अलग कनेक्शन होता है। तो मुझे लगता है कि आज के ज़माने में ऑनलाइन, ऑफलाइन आपको दोनों ही तरीके से अपना टी-शर्ट का या कोई भी कपड़े का बिज़नेस लेके जाने की ज़रूरत है। ताकि आप अपने रूट से भी जुड़े रहो और साथ में आप आज की चलती हुई आगे की दुनिया के साथ भी आगे बढ़ो। यहाँ पे नेटवर्क का इश्यू अभी चल रहा है। अच्छा, ठीक है। जैसे कि अभी वाइंड अप कर लेते हैं, ठीक है ना? शायद हो गया, अभी आपको भी जाना होगा। सो एक एक लास्ट मैसेज उनके लिए, जो ड्रीमर्स के लिए एक लास्ट मैसेज दे दीजिए, जो ड्रीम करना चाहते हैं, जो जस्ट टेक योर ड्रीम मूवमेंट के लिए एक लास्ट मैसेज दे दीजिए एंड देन पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपने जो शुरू किया है ये पॉडकास्ट, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपका ये जो इनिशिएटिव है, ये आइडिया है, क्योंकि मैं चाहती थी कि कुछ ऐसा हो जिसको सुन के लोगों को लगे हाँ यार ठीक है, बड़े सक्सेसफुल अमीर लोग तो बहुत बोलते हैं, बियर बाइसेप तो चलता है, आ रहे हैं सेलिब्रिटी, पर नॉर्मल लोगों का क्या, वो कैसे वहां तक पहुंच रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। तो हर एक छोटे कॉमन इंसान को अपना ड्रीम अचीव करते हुए देखना, या उनके स्ट्रगलिंग स्टेज पे, या जो लोग के कई सारे फेलियर्स रहे हैं, ऐसे लोगों को अपने पॉडकास्ट में लेके आना, उनका इंटरव्यू लेना इज, मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा और नया इनिशिएटिव है। तो मैं उस चीज के लिए आपको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगी। एंड सेकेंडली, ड्रीम अचीव करने के लिए मुझे एक लाइन अगर बोलना होगा तो मैं बोलना चाहूंगी, जस्ट डू इट। कर दो बस, इंडिया की जनता कर दो। तो तो यही था आज का पॉडकास्ट, मेरा पहला पॉडकास्ट ज़ोई के साथ, जिन्हेरी के साथ। और शायद होप आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगे, है ना?
और बहुत सारे नॉलेज मिले होंगे। सो अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इंस्टाग्राम जस्ट सपने को भी फॉलो कीजिए। एंड बस आगे बढ़ते रहिए और चिन्हरी के इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए। वहाँ पे जाइए और एक्सप्लोर कीजिए, उनके ऑनलाइन पेजेस देखिए, उनके ऑनलाइन स्टोर देखिए, और हो सके तो आपको अच्छा लगे तो अपनी कहानियों वाली टी शर्ट मंगा लीजिए, है ना। एंड बाकी काम करते रहो, ड्रीम्स पे फोकस करते रहो, और जो भी है आप सभी का ड्रीम फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। टेक केयर एंड जस्ट टेक योर ड्रीम। No dreamer too small. Just take your dreams